कोई भी क्लाउड पिक कर लो बट ढंग से कर लो ताकि तुम रिलेट कर पाओ चीज। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, अपना ओवरहेड बचाने के लिए, पैसा खर्च मत करो बेवकूफ बनाने। हर दूसरा बंदा बैठा है इंटरनेट पे, सबके पास 1.5 से 2 लाख रुपए इंटरनेट पे सोना बिखरा हुआ है, एक चीज पकड़ो। Hello, guys, and welcome back. And I have an amazing person with me. And I'll just give you a little bit backstory about him. He was running short. So instead of canceling the show, he said, Avinash, can we postpone it for, after 1 hour? So I said, okay. And the amazing thing is, usually I've seen many people canceling the show because they are not available. And today is Sunday. Obviously, this person has some personal life, social life, and different stuff. But he's sitting right now with me to tell you guys how you can actually learn about cloud computing and related things related to cloud. So I would like to welcome Ravish with me. He is an amazing person. I was looking at his YouTube channel, and obviously, I don't think I am the right person to tell about everything about him. So Ravish, let us know, my audience, about you and what do you do. Okay. Hey everyone. First of all, Avinash, thanks for having me here. And I would like to connect with everyone that is people who watches your channel. Okay. So I'll just start a brief introduction about me. My name is Ravish. I have over 10 years of experience in cloud and DevOps. I started my career as a dev, and I used to code in Java and then a bit on C# as well. In 2010, actually, my career started from a Microsoft student partner. I was a part of this community and served there for like 2 years. Had my own fun time over there. Okay. And in 2012, when I passed out, I passed from IT. My branch was IT, and after that, I joined a startup. After around 9 to 10 months, I stopped this startup stuff, and then I moved to an MNC. I came to Bangalore and joined one financial based software company and worked there for 2 years as a dev. At that time in 2013, I was introduced to DevOps. Okay. I can tell you how the thing was there. Like, okay, so somewhere around 2013, I was introduced to Hudson. अभी बहुत लोग जानते नहीं होंगे कि what is Hudson. अब लोग Jenkins जानते हैं. तो उस टाइम पे हडसन हुआ करता था. आई वॉज इंट्रोड्यूस एट दैट टाइम. उस टाइम डेवऑप्स के बारे में लोग जानते भी नहीं थे. मोर ऑफ अ बिल्ड एंड रिलीज इंजीनियरिंग काइंड ऑफ अ थिंग. तो ये वाली चीज जो थी उस वक्त मुझे पता लगी. और उसके बाद 2015 में व्हेन आई स्विच्ड फॉर अनदर जॉब, आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ क्लाउड. Now, when I was a student partner for Microsoft, I knew about Azure but never worked on it. In 2015, I started working on that, and that was the like time जब मुझे पता लगा कि okay, there is something known as cloud और इस पे काम किया जा सकता है. And after that, my journey started. And then after Azure, AWS was already a big player, and मेरे को 2019 के आसपास बहुत ज्यादा काम करने को मिला उसका. तो उसके बाद मैं जीसीपी से इंट्रोड्यूस हुआ. बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जीसीपी में, पर हाँ आइडिया है कि मतलब चीजें कैसे काम करती होंगी. दैट्स द सेम थिंग कि अगर तुम्हें एक मोटरसाइकिल चलानी आती है तो फिर तुम दूसरी मोटरसाइकिल चला लोगे. ओके. तो इवन बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि मतलब कौन सा क्लाउड पिक करूं. तो मेरा मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई भी क्लाउड पिक कर लो बट ढंग से कर लो ताकि तुम रिलेट कर पाओ चीजें. तो यही है ओवर. और बाकी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तो ये है कि क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है. ओके. आज एक टूर्नामेंट था, उसका एक मैच जीते हैं. क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट है. तो यही है फिलहाल. और आप कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए. क्रिकेट से ऑब्वियसली क्रिकेट इज ऑल्सो माई फेवरेट गेम एंड आई विश इंडिया आज फाइनल में होता तो एटलीस्ट इस इंटरव्यू की जगह हम वो वाला मैच देख रहे होते. बट एनीवेज रवीश, यू टोल्ड अस सो मेनी थिंग्स. आपने बताया कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर भी थे, देन यू केम टू नो अबाउट डेवऑप्स एंड देन यू केम टू नो अबाउट क्लाउड. अब you won't believe students are quite curious. Like if I talk about myself, मैं अपने चैनल पे सिर्फ क्लाउड के बारे में बहुत ज्यादा स्टूडेंट से बोलता हूँ. स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेश्चन लाइक व्हाई क्लाउड. मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग एक चीज होती है कि ठीक है, लाइक यू कैन डू ऑल द स्टफ ऑन द फ्लाई फ्रॉम योर लैपटॉप, यू डोंट हैव टू हैव द एक्सेस ऑफ हार्डवेयर. बट क्वेश्चन ये आता है कि लाइक व्हाई कंपनीज आर लुकिंग फॉर क्लाउड. बिकॉज मैं जब कॉलेज में हूं तो मुझे बोला जाता है कि आप जावा सीखे, C++ सीखिए, ये लैंग्वेज सीखिए, वो लैंग्वेज सीखिए. क्लाउड के बारे में सिर्फ एक चैप्टर होता है या फिर एक सब्जेक्ट होता है जो मुझे थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ता है. एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हुआ था. सो क्लाउड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है? आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री. ओके. तो मैं कोशिश करूंगा चीजें मतलब सिंपल रखने की और बहुत ही छोटी छोटी चीजों में समझाने की कोशिश करूंगा.
एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए जैसे कि आपने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी। ओके। तो खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपका जो भी डेटा होगा वो आप कहीं स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। ओके। जो भी आपके सर्वर्स होंगे, उन सर्वर्स को क्या चाहिए, सबसे पहले उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर दैट, ठीक है। उनको मेंटेन करने के लिए लोग चाहिए, यू नीड मैन पावर फॉर दैट, ओके। उसके बाद अगर कुछ इश्यू हो गया तो तुम्हें रात को 2 बजे 3 बजे किसी बंदे को उठा के वहां भेजना पड़ेगा। मान लीजिए उन सर्वर्स पे आपका प्रोडक्शन का कुछ डेटा है, कुछ भी करप्ट हो सकता है, और जैसे बैंगलोर में भी फ्लडिंग हो रही है, ठीक है। मान लीजिए आपके जो सर्वर्स हैं वो अपने बेसमेंट में रखे हुए हैं, ये जस्ट मान लीजिए, आई मीन दिस इज सपोज करने वाली चीज। वहां फ्लडिंग हो गई, आपके तो सर्वर गए ना, आपका डेटा गया, ठीक है। तो एक इशू तो ये है कि मेंटेनेंस, दूसरा इशू ये है कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की आप कॉस्ट भी भरेंगे, और मैन पावर। तो ऑल इन ऑल दो बहुत बेसिक चीजें, एक तो मेंटेनेंस वाली चीज है और दूसरी कॉस्ट वाली चीज है, ठीक है। तो ये आपको खुद से मेंटेन करना पड़ता है। क्लाउड का फंडा क्या रहता है कि क्लाउड भी एग्जैक्टली सेम चीज है, बट इट इज एक बहुत फेमस चीज है कि इट इज क्लाउड इज नथिंग बट जस्ट लिनक्स सर्वर समवेयर एल्स। किसी और जगह पे कहीं सर्वर्स पड़े हुए हैं, बस वही एग्जैक्टली क्लाउड, और तुम बस उन्हें एक छोटी सी मशीन से कैप्चर कर सकते हो। तो कंपनीज क्या करती हैं अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, अपना ओवरहेड बचाने के लिए, जो पब्लिक प्रोवाइडर्स हैं जैसे AWS, GCP और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनका एज्योर है, ये लोग क्या करते हैं अपना जो सारा काम है वो उन सर्वर्स पे शिफ्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इनको एटलीस्ट दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस पार्ट, ये पार्ट समझने की जरूरत ही नहीं होती, अपना सर्वर स्पिन किया। बिकॉज ऑल्सो यू शुड गिव इट टू द कंपनीज कि उन्होंने चीजें इतनी सिंपल कर दी हैं कि यू जस्ट हैव टू क्लिक लाइक 5 or 6 टाइम्स एंड देयर इज अ सर्वर फॉर यू। ओके। मतलब एकदम से एक मशीन मिल जाता नया, उसके अंदर तुम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। इनफैक्ट ऐसा ऐसा करते नहीं है लोग, मतलब तुम कोई हेवी गेमिंग करना चाहते हो ना अगर, और अगर किसी सर्वर में चीज गेम इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए भी सर्वर्स आते हैं, कंप्यूट वाले सर्वर्स होते हैं। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल है कि मतलब लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, क्योंकि सारा जो काम है वहां पर तुम्हें बस एक लैपटॉप चाहिए। और एक और चीज है, जैसे कि एकदम से लाइट चली गई तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारे कंप्यूटर का हार्डवेयर खराब हो गया, ठीक है, तो तुम्हें उस सर्वर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सर्वर वहीं का वहीं वैसे रहेगा। एक दूसरी मशीन लो, अगर तुम्हारा लिनक्स मशीन है तो तुम SSH कर सकते हो, अगर तुम्हारा विंडोज मशीन है तो एक RDP फाइल होती है, उसे जस्ट लॉग इन करो, मिल जाएगा एक्सेस, एंड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो एक बहुत बेसिक रीजन है इसका कि मतलब लोग जनरली, कंपनी जनरली क्लाउड की तरफ मूव कर रही है। ओके, सो रवीश, आपने जो आंसर दिया इट साउंड्स वेरी गुड फॉर कंपनी की, कंपनी ये कर सकती, कंपनी वो कर सकती, बट आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ कंपनी राइट नाउ। सो मुझे क्लाउड से क्या मतलब, लाइक क्लाउड ठीक है कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, दैट इज फाइन, बट इफ आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ, तो मेरे लिए क्लाउड के क्या एडवांटेज हो सकते हैं? आई एम नॉट, मे बी आई एम नॉट प्लानिंग टू स्टार्ट माई स्टार्टअप, तो ये वीडियो फिर मेरे लिए यूजफुल नहीं है। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लाउड इफ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब? अगर मैं एक जॉब देख रहा हूँ तो क्लाउड का क्या एडवांटेज है मेरे लिए? देखिए, मतलब मार्केट में कई सारी जॉब्स हैं, जैसा कि आपने स्टार्ट किया था कि हमें जनरली, इवन मैं भी जब आज से कितना 14 साल हो गए, 14 ईयर्स पहले आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे को बस यही पता था कि दो ही स्ट्रीम होती है, या तो डेव बनो या टेस्टर बनो। मुझे उसके बारे में, उसके अलावा कुछ नहीं पता था। टेस्टिंग में मुझे ये भी नहीं पता था कि एक मैनुअल टेस्टिंग होती है, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा अच्छा एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है, एक रिग्रेशन टेस्टिंग भी होती है, एक API टेस्टिंग भी होती है, और भी बहुत कुछ होता है इसके चक्कर इसमें। तो उस टाइम पता नहीं था, लेकिन अब जो है जनता थोड़ी जागरूक हो रही है, और जियो के आने के बाद सबके हाथ में इंटरनेट है, तो लोगों को पता लग रहा है कि मतलब हाँ क्लाउड जैसा कुछ है। स्टूडेंट्स को, मतलब मैं देखता हूँ जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक को पता होता है कि मतलब अच्छा क्लाउड जैसा कुछ है, अच्छा प्रोग्रामिंग जैसा कुछ है। मैंने अपना पहला कोड लिखा था जब मैं सेकेंड ईयर में था, सी में, #include_stdio.h, वो तब पहला कोड लिखा था मैंने वहां पे। तो अब लेट्स सर्कल बैक टू योर क्वेश्चन कि मतलब एक स्टूडेंट को क्या फायदा है इससे। पहली चीज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई इसलिए करते हैं कि उन्हें एक अच्छा जॉब मिल जाए। यस। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना फैमिली बिजनेस करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि चल यार मैं और पढ़ता हूँ, आगे MBA करता हूँ, मैं IAS बनता हूँ, मैं किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ। देयर आर लॉट पीपल, पर मोस्ट ऑफ द क्या, अगर कंपनी में जाना है तुम्हें तो तुम्हें कोई स्किल सेट चाहिए, ठीक है। तो अभी चीजें ना ब्रांच आउट होनी स्टार्ट हो गई है, लोगों को क्लाउड के बारे में पता लगने लग गया, लोगों को डेवऑप्स के बारे में पता लगने लग गया, लोगों को QA में और चीजें क्या होती है पता लगने लग गई है। तो क्लाउड से फायदा एक स्टूडेंट को ये है कि इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, और तुम्हारे रिज्यूमे में एक स्टार ऐड हो जाएगा, एंड कंपनी विल बी कि इसे क्लाउड पता है तो अच्छा, हमें से ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, हम इसे 1 महीने में ऑनबोर्ड करेंगे, चीजें दिखाएंगे कि ओके दिस इज माय इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि कंपनी का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड चल रहा है, जो सर्वर्स हैं, वो सब जो भी ऑटोमेशन हो रहा है, वो जो है इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का कॉस्ट बचता है, और जब कंपनी का कॉस्ट बच रहा है
तो वो स्टूडेंट को हायर करना चाहेगी जिससे पता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, अगर 2 स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने, ठीक है, मेरा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एज्योर पे है, ठीक है, एक बंदे को पता ही नहीं है क्लाउड क्या होता है, एक बंदे ने एज्योर का सर्टिफिकेशन किया हुआ है, सर्टिफिकेशन से बाद में आएंगे, कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है और चाहे बेसिक किया हो, आई थिंक एज्योर का बेसिक सर्टिफिकेशन AZ 900 है, यस, वो किया हुआ है, तो मैं तो उसे ही लूंगा ना, क्योंकि मेरे को टाइम कम वेस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी का भी फायदा है, लाइक विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। मेरा भी फायदा है क्योंकि मुझे अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है, और जितना मुझे इसकी ट्रेनिंग पे खर्च करना होगा, अगर मैं दोनों बंदों को 4-4 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो हो सकता है मैं 4.5 लाख रुपए दे दूं कि चल यार तू खुश रहे, बट तू मेरी कंपनी में आ जा। तो स्टूडेंट का ये फायदा है इससे कि तुम्हें एक पेडेस्टल मिल रहा है कि तुम्हें अगर क्लाउड आता है तो देयर इज अ हाई चांस कि तुम कंपनी में जा सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कंपनी मूव होने लग गई हैं। अब ऑन प्रेम बहुत कम कंपनीज है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पर मोस्टली कंपनीज मूव होने लग गई हैं। तो मैंने जब अभी जितनी भी कंपनी में काम किया सबके पास क्लाउड है। तो बेसिकली या आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू शॉर्ट, मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आई, लाइक आई गिव एन एग्जांपल, लाइक लेट्स से अगर हम किसी भी एक कंपनी की बात करें, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक। अगर आप फेसबुक में ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, टू यू हैव टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स से पाइथन। व्हेन यू लर्न पाइथन, व्हेन यू विल ज्वाइन फेसबुक, यू हैव टू लर्न हाउ पाइथन इज बीइंग यूज्ड एट फेसबुक, पाइथन कैसे फेसबुक पे यूज होती है। बट अगर हम क्लाउड की बात करें, सो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से कि अगर आपको क्लाउड का बेसिक्स पता है, सो सिंस दैट इज गोइंग टू बी वर्किंग विद द कंपनी ऑल्सो, तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आप कंपनी में काफी आसानी से ऑनबोर्ड हो सकते हैं। सेकेंडली, क्योंकि आपके पास वो एक स्किल पहले से है, तो कंपनी विल कंसीडर यू एज एन एक्सपीरियंस्ड। आई डोंट वांट टू से कि आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा, बट यस, कंपनी विल कंसीडर यू। आई मीन, दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से। यस यस, तो मतलब उसके पास ऑलरेडी एक स्किल सेट है, मुझे बस उसे पता है वही कि वो एक तराशने वाली चीज है, मतलब मेरे को बस थोड़ा सा तराशना है उसे, उसको पहले से पता है चीजें। मतलब वही है ना कि ग्लास जो है वो खाली नहीं है, उसमें ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, मुझे बस थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा उसे नॉलेज देना है, एंड ही और शी विल बी एबल टू रिलेट स्टफ। Okay, so I just want to add कि अगर आप फ्रेशर हैं तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू गाइस कि आपको ये चीज समझनी चाहिए, बिकॉज यूजुअली ये होता है कि आपके पास कोई भी लैंग्वेज हो, लाइक आई हैव ट्रेन सो मेनी बिग कंपनीज, एमएनसीज में मैं ट्रेनिंग देने जा चुका हूँ। वहां पे होता ही है कि लाइक आप जब जाते हो कॉलेज से, तो आपको पहले 3 महीने सिखाया जाता है। सो दिस प्रोसेस विल बी रिमूव्ड अगर आपके पास क्लाउड की नॉलेज है। नाउ यू डिस्कस्ड अबाउट दी सर्टिफिकेशंस, इफ आई टॉक अबाउट, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है, क्लाउड इज अ वेरी न्यू टॉपिक टू मी। ठीक है, क्लाउड मेरे करिकुलम में है एंड आई विल स्टडी इट बिकॉज मुझे एग्जाम्स में पास करना है। अब ये सर्टिफिकेशन करना क्यों जरूरी है मेरे लिए? लाइक ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड की इंपॉर्टेंस क्या है, बट इससे ठीक है मुझे एडवांटेज मिलेगा, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, लेकिन इसका मेरे लिए क्या एडवांटेज है? कंपनी को तो पता है ठीक है आपके पास सर्टिफिकेशन है, मुझे क्या एडवांटेज मिलेगा? ओके ओके, तो ऐसे समझ लीजिए कि जब आप किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सर्टिफिकेशन इज एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब, क्योंकि सबको ही पता है ये चीज कि क्वेश्चंस मिल जाते हैं तुम्हें, ठीक है, कहीं से भी, जैसे डम्प्स बोलते हैं जैसे, ठीक है, तुम्हें कहीं से भी इंटरनेट पर ढूंढोगे तुम्हें किसी भी एग्जाम के डम्प्स मिल जाएंगे, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। बट कंसिडरिंग अ सिचुएशन कि अगर किसी बंदे ने पढ़ाई करी है, उसने सर्टिफिकेशन निकाला है, द फर्स्ट थिंग इज ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट। वो सीरियसनेस दिखाई देती है मुझे उसके अंदर कि इसने सर्टिफिकेशन करा है। और जब तुम्हारे रेज्यूमे में एक बैज मिलता है, कोई भी सर्टिफिकेशन करो तो एक बैज मिलता है, अगर तुमने अपने रेज्यूमे में वो बैज लगाया हुआ है, तो मेरी आई सबसे पहले उसके पास जाएगी ना कि इसने सर्टिफिकेशन करा हुआ है, तो इसका मतलब एटलीस्ट ये तो पता है इसे। तो जैसे आपने बात करी से पहला सर्टिफिकेट AZ 900, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट के केस में AZ 900 है, AWS के केस में क्लाउड प्रैक्टिशनर है, और GCP केस में ASC है, एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर है। तो ये तीनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। और एडवांटेज ये भी है कि कई बार क्या हो रहा है आजकल, आई थिंक सिंस लास्ट 1 ईयर और 2 इयर्स ऐसा माइक्रोसॉफ्ट में किया है कि वो खुद की कुछ ट्रेनिंग कराता है। माइक्रोसॉफ्ट के शायद कुछ डेज होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। यू कैन गो देयर ऑन द वेबसाइट, सर्च कर सकते हो, अपने आप को एनरोल करो उसमें। अगर तुम वो ट्रेनिंग 1 और 2 दिन की लेते हो प्रॉपर, तो तुम्हें सर्टिफिकेशन करने का चांस मिलता है फ्री में। ओके, ये फ्री में मिलता है, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और मैंने खुद किया है, मतलब 1-2 लोगों को बताया तो उन्होंने किया था। मुझे अभी पता नहीं है कि ये चालू है कि नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन। और तुम उस ईमेल आईडी जिससे रजिस्टर होते हैं उसको यूज करके सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो अगर तुम्हें एक फ्री फंड में सर्टिफिकेशन मिल रहा है, तुम्हें 4-5 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू डू इट।
सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तुम्हारा फायदा ही है उसमें कि तुम्हारे उसमें जुड़ जाएगा, और मुझे सीरियसनेस दिखाई देगी। अगर किसी रेज्यूमे में कोई बंदा सर्टिफाइड है, मैं तो उसे ही चांस दूंगा ना। अगेन द सेम थिंग, मेरा तो फायदा ही है और तुम्हारा भी है कि तुम्हें आती है, मेरे को कम टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। अब चीजें यही होती है कि कंपनी में जब तुम होते हो ना, तो टाइम इज द एसेंस। तो अगर मुझे किसी बंदे को कुछ डिलीवरी करवानी है, और एक फ्रेशर है मेरे साथ, और एक फ्रेशर है जिसके पास क्लाउड का सर्टिफिकेशन है, मैं क्लाउड के सर्टिफिकेशन वाले को पिक करूंगा। क्योंकि ऑब्वियसली पहले इंटरव्यू तो हो गई, मतलब ऐसा नहीं है कि वो डंप करके आ गया, तो ऐसा नहीं है, इंटरव्यू तो हो गई, बट अगर ऑब्वियसली वो सही बंदा है, सब कुछ जस्टिफाई किया, तो मेरा कितना फायदा है। और फिर वही चीज है कि मतलब मैं तो उसे ही जॉब दूंगा, और इट्स वेरी मच इजियर फॉर टू गेट अ जॉब। तो एक स्टूडेंट के लिए यही है कि अगर करते हो तो तुम्हारे पास नॉलेज है, और पर्सनली तुम्हारा बहुत फायदा है। ये है, मतलब यू हैव एन एज ओवर पीपल। So basically, like again, I want to add one more thing here. First of all, ये जो certification है, these are not participation certification. These are certifications which are earned by you. Secondly, they have a recognition around the globe. So that does not mean कि अगर आपने ये certification India में किया हुआ है तो outside India की companies won't recognize you, because these are centralized certification. Now, one more thing I want to understand from you, Ravish. Usually क्या होता है कि like when I want to become a software engineer, it is very easy for me. Learn Java, you will get a job in this company. Learn backend programming, you will get a job in this company. Learn front end, आपके पास ये companies आ जाएंगी. या फिर companies are very specific. We are looking for a React developer, if I talk about, or I would say we are looking for a Angular developer or maybe Node.js developer kind of a thing. तो मुझे पता है कि मुझे एक language सीखनी है, मुझे उस लैंग्वेज में एक्सपर्टीज लेनी है। अब मैं अगर क्लाउड की बात करता हूं तो क्लाउड हैज लाइक, अगर AWS की बात करें तो 200 प्लस सर्विसेज। इट्स अ ह्यूज थिंग। अब अगर मैं 200 सर्विसेज को भी सीखूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एंड आई एम स्टूडेंट राइट नाउ। तो हाउ कैन आई, व्हाट कैन आई डू टू एक्चुअली फास्ट ट्रैक दिस प्रोसेस? बिकॉज क्लाउड के बारे में जैसे ही मैं सीखने जाता हूँ इतनी सारी चीज आती है। अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो देयर आर अराउंड मे बी 16-17 सर्टिफिकेशंस ऑल टुगेदर, एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मेरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ओके, तो जैसे कि आपने वो बात कही थी, ग्लोबली सबको पता है, रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के सर्टिफिकेशंस बनाए हुए हैं। प्लीज उस तरफ ना जाए, ठीक है? पैसा खर्च मत करो, बेवकूफ बनाने हर दूसरा बंदा बैठा है इंटरनेट पे, और तुम्हारा हार्ड एंड मनी है। प्लस प्रॉब्लम ये भी है ना कि स्टूडेंट्स का जो पैसा है, अगर दे रहे हो तो कोई वैल्यू दो। अब कोई भी बंदा अपना सर्टिफिकेशन बना के बैठा है, तुम सर्टिफिकेशन को दिखा रहे हो, अगर तुम मेरे पास आ गए, ओके दिस इज आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम दिस एकेडमी, मुझे नहीं चाहिए यार। मतलब कॉपी पेस्ट कर दोगे तुम, मैं नहीं उठाऊंगा तुम्हें। कहीं से करो, माइक्रोसॉफ्ट की कुछ वैल्यू है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट को तुम यूएस में जाओगे, यूके में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट है। अब मैं बना दूं लॉजिक ऑप्स लैब सर्टिफाइड AWS इंजीनियर, कौन जानता है मुझे? मुझे मेरे गली के बाहर वाले लोग नहीं जानते। क्यों जानते हैं? मतलब ऐसे लोगों ने बना रखे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब व्हाई वुड यू इवन गो देयर। ये तो एक ही पॉइंट में कहना चाहूंगा कि मतलब अगर आप लोग सुन रहे हैं इस बात को, तो ऐसा सर्टिफिकेशन ना ही करें, और अगर करते भी हैं तो अपनी नॉलेज के लिए करें, अपने रेज्यूमे में ना लिखें। रेज्यूमे में लिखने के लिए बहुत चीजें होती है, तो अपने रेज्यूमे में मत लिखना। और सर्टिफिकेशंस की जो बात आ रही थी कैसे बनाए, तो सबसे अच्छी चीज जो माइक्रोसॉफ्ट AWS GCP ने करके दी हुई है, आप इंटरनेट पे जाएं, टाइप करें AZ900। AZ900 जैसे टाइप करेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट के पहले दूसरे लिंक पे मिल जाएगा। वहां पर अगर आप देखेंगे तो सीधा उन्होंने कोर्स दिया हुआ है पूरा। अब कोर्स का एक करिकुलम होता है कि ये चीज पढ़ें, ये चीज पढ़ें, ये चीज पढ़ें। तो अगर आप वो चीज पढ़ के, क्योंकि क्लाउड बहुत बड़ा है, जैसे कि आपने कहा 200 प्लस सर्विस, अभी 250 प्लस सर्विसेज हो चुकी हैं, और ये बढ़ेंगी ही आगे, मतलब कम कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले जाएं, कंफ्यूज ना हो कभी भी, जो भी सर्टिफिकेशन है। और अगर आपको क्लाउड की नॉलेज चाहिए ही, तो सर्टिफिकेशन के थ्रू ही स्टार्ट करें, चाहे आप सर्टिफिकेशन करें या ना करें, चाहे ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन इफ यू डू और नॉट, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो दैट्स ओके, नहीं है तो मत कीजिए, बट जाइए वेबसाइट पे, टाइप कीजिए AZ900 और उसका करिकुलम देखिए, पूरा कोर्स। वो सब बताएंगे आपको कि अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। बहुत बेसिक चीज, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है तुम्हारा, तुम्हारी S3 बकेट क्या होती है, तुम्हारी स्टोरेज क्या होती है, तुम्हारा डेटाबेस क्या होता है, तुम्हारे जो उनकी ब्रेड एंड बटर है AWS की EC2 सर्वर्स, और एज्योर में उसको VMs बोल देते हैं, VMs, और उसमें शायद उसे कंप्यूट इंजन ऐसा करके कुछ बोल देते हैं। सेम चीज है, नाम अलग अलग है। तो ये चीजें आपको AZ900 ने बता देगा, तो बस वही गो थ्रू करें, क्योंकि वही बेसिक है। अगर आपको क्लाउड के वर्ल्ड में घुसना है, और किसी भी क्लाउड में घुसना है, तो अगर GCP में घुसना है तो ACE करके होता है, एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर।
अगर आपको AWS में घुसना है तो उसका प्रैक्टिशनर एग्जाम है, AWS प्रैक्टिशनर, वो कीजिए, नहीं तो AZ900 अगर माइक्रोसॉफ्ट में करना है। वो करिकुलम अगर आपको समझ में आ गया तो वही है कि आपने ABCD पढ़ ली, अब आप वर्ड्स बनाना सीखेंगे। उसके बाद तो मल्टीपल है, बहुत सर्टिफिकेशन, AZ104 है, आर्किटेक्ट लेवल है, 303 है, 304 है, डेवॉप्स का अपना एक है, एजोर का अपना एक डेवॉप्स सोल्यूशन है, AZ400, वो अलग आ जाते हैं। पर बेसिक अगर आपको बनाना है कहां से स्टार्ट करूं, लाइक फ्रॉम वेयर शुड आई गेट स्टार्टेड, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। गो टू द इंटरनेट, टाइप AZ900, देखिए उसका करिकुलम एंड देन स्टार्ट लर्निंग, और वही आपका बेस है। एंड आई बिलीव ये करिकुलम फ्री ऑफ कॉस्ट है या चार्ज? ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। करिकुलम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनफैक्ट आपको वीडियोस भी फ्री में मिल जाएंगे। यही प्रॉब्लम है कि सोना बिखरा हुआ है इंटरनेट पे, तुम्हें बस उठाना आना चाहिए। मतलब जो कोर्स तुम 50,000 का, जो कंपनी 50,000 60,000 कंपनीज रीच आउट टू मी कि 1.5 लाख के 2-2 लाख के कोर्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी कंपनी का, यहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए के कोर्सेज हैं। वो बच्चा जो पहले इतना पैसे खर्च करके आ चुका है, अब देखो यार, हर बच्चे के पास पैसा नहीं होता, ठीक है, कई लोग मिडिल क्लास से होते हैं, कई लोअर मिडिल क्लास से आते हैं कि चल मैं मेहनत करके पढ़ाई करके आगे बढ़ूंगा, सबके पास 1.5-2 लाख रुपए नहीं। इंटरनेट पे सोना बिखरा हुआ है, बस तुम्हें पता है कि तुम्हें बस ये ढूंढना आना चाहिए कि मतलब कहाँ है, उठाओ और ले लो। फ्री में इतना नॉलेज भरा पड़ा है। मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे चैनल है जो फ्री में नॉलेज दे रहे हैं यार। इतने सारे DSA के बना रखे हैं लोगों ने, पाइथन के इतने सारे बना रखे हैं, शेल स्क्रिप्टिंग, जो बेसिक स्क्रिप्टिंग होती है कि मतलब जैसे क्लाउड में आप सर्वर्स पे काम करेंगे तो आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। तो ये वाली चीजें पहले से तुम्हें मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएंगी, तो जरूरी नहीं है कि पैसा खर्च करो। करिकुलम देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनफैक्ट तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम्हें चीजें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, तो ये देख सकते हैं। ओके, आपने एक चीज ये मेंशन करी कि क्लाउड में आई मीन क्लाउड लर्न करने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं? आई मीन सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि लाइक लेट्स से व्हेन वी से कि आपको जावा की जॉब है, तो ऑब्वियसली दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे जावा आनी चाहिए। अब वो जावा जब देखते तो फिर उन्हें ये समझ में आता है कि मुझे ये लैंग्वेज आनी, आई मीन मुझे ये सारे कंसेप्ट आने चाहिए। सो कुछ लोगों के लिए प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट व्हाट आई फील कि क्लाउड एक ऐसा आई मीन क्या प्लेटफॉर्म तो नहीं बोलना चाहिए, बट क्लाउड एक ऐसा मीडियम है जहां पे इफ यू आर नॉट अ प्रोग्रामर ऑल्सो यू कैन एक्चुअली मेक अ करियर। बट कुछ चीजें हमें क्लाउड में एंटर करने के पहले बननी चाहिए। सो व्हाट आर दोस थिंग्स, लाइक एज अ कंपनी, लाइक ऑब्वियसली यू आर वर्किंग इन अ कंपनी वेयर यू आर यूजिंग क्लाउड, सो व्हाट डू यू थिंक आर द बेसिक थिंग्स जो कि स्टूडेंट्स को बननी चाहिए सो दे कैन बी कॉन्फिडेंट दैट यस मैं क्लाउड में काफी कुछ कर सकता हूँ? ओके, तो देखिए, काफी लोग होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग पसंद नहीं होती है, पर वो इसलिए करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग मनी, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि पसंद नहीं है तो नहीं करेंगे, प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है तो नहीं करेंगे। तीसरी होती है कि आती ही नहीं, नहीं मुझसे होता ही नहीं है, ओके, जस्ट फाइन, मतलब सबका स्किल सेट एक जैसा नहीं हो सकता, एंड नो टू पीपल आर सेम। तो उस केस में क्या कीजिए, क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए आपको पहले तो क्लाउड का पता होना चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिएगा। तो इसके लिए एक और चीज बता देता हूं कि जब आप कोर्स करते हैं वो वाला, तो वो आपको ये भी बताते हैं कि आप फ्री में अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आई थिंक आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, आप एक अकाउंट बनाइए, आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, मेक श्योर उन क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके आप वो सारी बेसिक चीजें सीख लें। मैंने भी ऐसे ही किया था, और जैसे ही वो क्रेडिट्स खत्म होने वाले हो सारी चीजें डिलीट कर दें, कोई भी चीज ऑन ना रखें। इनफैक्ट पढ़ने के बाद सारी चीजें डिलीट करें, ऑन ना रखें, नहीं तो पैसा ऐसे जाता है, मैंने खुद भरे हुए हैं पैसे गलती से, तो वो गलती ना करें। और जब एक बार सीख जाए तो पता है क्या होता है कि एक बार अगर आप घुस गए वहां पे तो फिर चीजें ब्रांच आउट होती हैं। आप 100% क्लाउड इंजीनियर नहीं रह सकते, ठीक है, और अगर आपको रहना है तो फिर वो आपको बहुत हायर लेवल पे जाना होता है, मतलब एक्सपीरियंस लगता है उसके लिए कि मतलब बंदा SME है, SME मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, कि ये क्लाउड का बंदा है। तो वो बंदा फिर काम नहीं करता, वो बताता है फिर कि मान लो मेरे पास 15 साल का क्लाउड का एक्सपीरियंस है, AWS का एक्सपीरियंस है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा। अब लोग बोल रहे हैं कि मेरी एप्लीकेशन में मुझे डेटाबेस चाहिए, तो मैं उसे ये बताऊंगा कि एक काम कर, डेटाबेस मत इंस्टॉल कर किसी EC2 सर्वर में, RDS सर्विसेज ले ले। अब वो मेरे से पूछेगा कि RDS सर्विसेज क्यों लूं, तो फिर मैं उसे समझाऊंगा कि तू बार बार जाएगा, अपने VM में लॉग इन करेगा, उसके अंदर देखेगा डेटाबेस, इससे बढ़िया एक सर्विस जो है वो सेपरेट है, क्योंकि RDS को स्केल करने में, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, इनको सबको स्केल करना बहुत आसान होता है। अब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारी कंपनी में 100 कस्टमर है, कल को भी 100 ही रहेंगे, हो सकता है कल 1 लाख हो, फिर स्केल कैसे करोगे चीजें। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना अभी, ये बातें तब पता लगेंगी तुम्हें जब तुम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो जाओगे। तो उसके बाद क्या होगा, तुम बताओगे लोगों को कि अब ये इस्तेमाल कर, ये इस्तेमाल कर, MS SQL इस्तेमाल कर,
इनका अपना DynamoDB है, वो क्यों ना इस्तेमाल कर, या फिर DynamoDB सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, Aurora क्यों ना कर, ये सब चीजें मैं बताऊंगा उन्हें कि मतलब ये इस्तेमाल कर। तो ये एक्सपर्टीज तब आता है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। तो डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? नो मतलब मेरा अगेन आई विल रीट्रेट द क्वेश्चन कि मुझे बेसिक्स ऐसी क्या चीजें आनी चाहिए जिसमें मैं क्लाउड सीखना स्टार्ट करूं तो मेरे लिए आसानी हो। ओके ओके। तो पहले तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्लिक 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 करूंगा सिर्फ क्लाउड सीखने के लिए अपना करियर बना लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, होंगे एक दो केस, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि एक दो बंदे होंगे जो क्लिक 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 करके अपना करियर बनाते होंगे, बहुत लोग होते हैं। लेकिन अगर आप एक इंजीनियर हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप प्रोग्रामिंग में डीएस से सीखो, मुझे आज तक डीएस से नहीं आता। कोई मुझसे बोले कि स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस है, तो बस मैं लीफो फीफो करके खत्म हो जाता हूँ वहां पे। इससे ज्यादा मुझे पता ही नहीं है, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है डीएसए में। तो आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, आपको स्क्रिप्टिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को आप सर्वर्स में काम करोगे तो पूरी दुनिया में 90% से ऊपर सर्वर्स आ रहा हूँ लिनक्स, और लिनक्स में जो काम करती है चीजें वो होती है स्क्रिप्टिंग, बैश। बैश काम करती है। अब लिखने को तो आप उसमें पाइथन भी लिख सकते हो, जावा भी चला सकते हो, बट जो बेसिक कमांड्स होती हैं उसके लिए आपको बैश कमांड्स पता होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से, और ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक दो हफ्ते की चीजें हैं ये, एक दो हफ्ते में कमांड्स तुम्हें याद हो जाएंगी, और छोटी मोटी अगर चाहो तो प्रोग्राम लिख के भी देख सकते हो। इनफैक्ट अगर मेरे चैनल पे देखोगे तो वहां तुम्हें स्क्रिप्टिंग का एक बैच का भी मिल जाएगा और बैश का भी मिल जाएगा। और अगर तुम बहुत ही अच्छे हो प्रोग्रामिंग में तो अच्छी बात है, तुम्हें पाइथन आती है, जावा आती है, तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छी चीज है। बट अगर तुम्हें मुश्किल हो रही है चीजें सीखने में, और तुम्हें लगता है यार थोड़ा बहुत भी नहीं हो रहा है, तो बैच स्क्रिप्टिंग से स्टार्ट कर लो। आजकल कोई यूज नहीं करता ऐसे, बट तुम्हारे बेसिक्स ठीक ठाक हो जाएंगे। और अगर तुम्हें सी आती है तो फिर कुछ और भी देख सकते हो। सी में अपना जॉब मिलता नहीं है आजकल, क्योंकि वो एम्बेडेड वाले जॉब्स होते हैं, तो क्लाउड का उससे उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। और बेसिक स्क्रिप्टिंग सीख लो, शेल स्क्रिप्टिंग और बैच स्क्रिप्टिंग, नहीं तो फिर पावर शेल सीख सकते हो। ओके। और अगर ये ऑलरेडी आती हैं चीजें, तो फिर एक पाइथन पकड़ लो, क्योंकि कल को पता है क्या होगा कि जब आप क्लाउड इंजीनियर बन जाओगे तो आप सिर्फ आप खुद भी देखिए कि मैं हूं और मेरी कंपनी में एक बंदा है जो सिर्फ मुझे एक वीएम बना के दे रहा है, तो यार वो काम तो मेरा डेवलपर भी कर लेगा थोड़े दिन बाद। तो तुम्हारी वैल्यू क्या है? कंपनी तुम्हें पैसा तब देती है जब तुम कंपनी को कुछ वैल्यू देते हो। आर यू गिविंग एनी वैल्यू? 100% क्लाउड इंजीनियर जो बन जाते हैं, एसएमई बन जाते हैं, वो अलग वैल्यू ऐड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉस्ट कैसे बचेगा, किस में मेरा प्रोसेसिंग ज्यादा होगा। फेसबुक के जो सर्वर्स चल रहे हैं वो किन सर्वर पे होंगे, उनका कोड कहाँ चल रहा है, वो एसएमई होते हैं। पर बेसिक अगर चीज चाहिए तो छोटी मोटी स्क्रिप्टिंग सीख लो, या तो पावरशेल और बैच में से एक पकड़ लो उन दोनों के लिए, विंडोज के लिए। और अगर शेल चाहिए तो सॉरी शेल स्क्रिप्टिंग सीखनी है तो वो तुम्हारे लिनक्स में काम आएगी। तो ये बेसिक चीजें आई थिंक तुम्हें आनी चाहिए। और सिर्फ क्लाउड इंजीनियर को टारगेट मत करो। क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हो तो तुम्हें क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए, बट 2-3 तीर अपने तरकश में रखो। मतलब तुम्हारे पास, तुम्हारे आर्मर में 3-4 चीजें होनी चाहिए, कि मतलब सिर्फ इसके बेसिस पे जॉब नहीं मिल सकता। कि मतलब अगर तुमने क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन आगे आने वाला है तो मैं इसे अभी एड्रेस कर देता हूं कि मतलब एक फ्रेशर को क्लाउड इंजीनियर जॉब मिलने के कितने चांसेस है। ठीक है। ओके। पहली चीज कि देयर इज अ वेरी लो चांस कि तुम्हें सिर्फ क्लाउड के बेसिस पे हायर कर लिया जाए। ओके। और ये थोड़ी ब्रूटल रियलिटी है, बट दिस इज एक्चुअल। आई विल टेल यू द रीजन। मान लो मेरी कंपनी का जो कोड है जो मैं क्लाइंट को दे रहा हूं, मान लो मैं फेसबुक हूं, ठीक है, मेरे पास 1000 क्लाइंट्स हैं जो मेरी वेबसाइट चलाते हैं, आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक नया फीचर डालना चाह रहा हूं, मैं एक चैट फीचर डालना चाह रहा हूं अपना। ठीक है, मैंने फीचर डाला, चैट फीचर बढ़िया चल रहा है, 1000 से लोग, मेरे 10,000 हो गए, लोग आपस में चैट कर रहे हैं। अब जो सर्वर पे मेरी जो चैट सर्वर मेरे चल रहे हैं, मैंने एक क्लाउड इंजीनियर को बोल दिया कि भाई एक काम कर, जो मेरा नया कोड है मैं इमोजीज डालना चाह रहा हूं जिसमें, उसको कोड को तू डाल दे। उसने गलती से सर्वर ही उड़ा दिया, मेरा सर्वर ही डिलीट कर दिया। अब अगर मैंने बैकअप कर रखा है तो बात सही है, नहीं कर रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम केस डेवऑप्स के साथ भी होता है कि मतलब डेवऑप्स और क्लाउड अब थोड़ा मिक्स ही हो गया ऑलमोस्ट। मतलब डेवऑप्स एक सेपरेट चीज है, क्लाउड एक सेपरेट चीज है, बट इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ कंपनी जिसमें डेवऑप्स के साथ क्लाउड ना मिल रहा हो। ओके। दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। डेवऑप्स कैन एग्जिस्ट विदाउट क्लाउड, बट अगर तुम्हें डेवऑप्स के साथ क्लाउड आता है तो अच्छी, बहुत ही अच्छी चीज है। क्लाउड सेपरेट उतना मुश्किल है जाना। और एक तरीका ये है कि अगर तुम्हें कोडिंग आती है, मतलब कोड लिख सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, तो तुम एज ए डेव चले जाते हो, बट देन यू कैन एक्सपैंड योर होराइजन टू क्लाउड।
तो अब जमाना आगे बढ़ चुका है, अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और क्लाउड आता है, वेरी गुड चांसेस टू गेट इनटू अ कंपनी। बट 100% क्लाउड के नॉलेज पे अगर तुम कंपनी में घुसना चाह रहे हो तो थोड़ा हार्ड है। थोड़ा क्या मतलब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब 90-95% कम है। हाँ, यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर आप एक इंटर्न जा रहे हैं, एज एन इंटर्न जा रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती। पर फिर वही सवाल आता है कि इंटर्न भी कैसे ढूंढे। तो इसके लिए मतलब फिर वही है, लिंक्डइन, नौकरी पे देखो, अप्रोच करो, तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनको अप्रोच करो, क्योंकि जब भी किसी कहीं जॉब लेनी होती है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं कि अपने सीनियर्स को देखो कि वो कहाँ गए हैं, उनसे पूछो कि सर आप कहाँ जॉब करते हैं। खैर सर्वर वाला कल्चर तो नहीं चलता आईटी में, कॉलेज में बोलते हैं लोग सर बॉस ऐसा कुछ होता है। उनसे पूछो कि मतलब क्या प्रोसीजर है, लोगों से कनेक्ट करो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। और लिंक्डइन पे कनेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि अपनी कुछ कहीं मतलब हीरोगिरी में एक चश्मे में फोटो खिंचा रखी है वो डाल रखी है। प्रोफेशनल फोटो खिंचाओ, व्हाइट बैकग्राउंड लो, बहुत सारी वेबसाइट है जिनसे तुम्हें व्हाइट बैकग्राउंड मिल जाएगा, वो डालो। और ऐसा कभी मत करो कि मतलब एक खाली सर्कल डाल रखा है, फोटो नहीं डाल रखी है और लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी। और कोशिश क्या करो, लोगों से जब कनेक्ट करो और उनसे पूछते हो तो नोट दे दो कि आई सॉ योर वीडियो देयर, आई सॉ यू ओवर देयर, आई वॉन्ट टू कनेक्ट एंड आई वॉन्ट टू आस्क दिस। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि तुम लोग सीरियस हो, कि तुम लोग जॉब के बारे में जानना चाह रहे हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, मतलब जॉब लेने के लिए एज ए फ्रेशर। और इंटर्नशिप के लिए भी ये जरूरी है कि अपने सीनियर से पूछो या कनेक्ट करो कि इंटर्नशिप कैसे मिल सकती है। तेरा वेबसाइट है कैसे, इंटर्नशाला करके भी एक वेबसाइट है, और 2-3 है। और इंटर्न्स की होती है, मतलब कुछ पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, कुछ अनपेड इंटर्नशिप्स होती हैं। तो ये होता है, ये तुम्हें पूछना पड़ेगा, तुम्हें नेटवर्किंग करनी पड़ेगी बेसिकली। एंड डू नॉट कंफ्यूज नेटवर्किंग विद नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम से मत कंफ्यूज करना इसे। नेटवर्किंग करनी पड़ती है, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो लोगों को, उनसे सवाल पूछो। अब हर बंदा बिजी है, वो मतलब दे विल कम बैक, मतलब डिपेंड ऑन बंदा टू बंदा। तो ये है जो मतलब मोटा मोटा मैं आपको बता सकता हूँ। Okay, now Rishabh, you have mentioned, I mean, you have mentioned so many great points. There is one more question I have is, but when I talk about, जैसे कि मान लीजिए, if I'm becoming a front end developer, so front end developer, I can host my application over GitHub और maybe free resources मेरे पास available होते, तो मैं उससे अच्छा portfolio बना सकता हूँ. Let's say if I'm a Java developer, I can host a GitHub repository on GitHub और मैं वहाँ पे भी अपना एक portfolio दिखा सकता हूँ. But अगर मैं cloud की बात करूँ, so cloud is kind of limited to an account. You can take and screenshot kind of stuff. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि like I'm learning cloud from last 6 months. Now how can I make my portfolio? अगर मैं internship के लिए भी apply कर रहा हूँ तो at least I have to, because cloud internship I don't think कि every day company gives you. I mean companies who are like the startups who are funded, or companies who have at least maybe 200-300 people in them, they only offer cloud internship. Otherwise I have not seen many early stage company like 10 people company will offer you internship on cloud computing. So how can I build my portfolio for cloud computing apart from certification? जिससे if I'm approaching to a company, so at least मेरा resume देख के वो forward तो करें, ऐसा तो ना हो कि वो फेंक दे डायरेक्ट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो नेवर जस्ट राइट AWS, GCP एंड Azure इन योर अकाउंट, इन योर रेज्यूमे। सिर्फ यही मत लिखो, तुम लिखो तुमने किया क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बता रहा था कि सिर्फ क्लाउड तुम्हें नहीं दिया, क्लाउड जैसे IaaS PaaS सर्विसेज होती हैं, तुम्हें प्लेटफॉर्म दे देते हैं, और एक प्लेटफॉर्म ही समझ लो उसे, तुमने किया क्या उसके साथ। ठीक है, मेरे हाथ में एक ये पेन है, पेन इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर मी। अब इस पेन से मैं किसी को धमकी भरा लेटर देख के अपनी जिंदगी खराब कर सकता हूं, इसी पेन से एक नोवेल लिख के वर्ल्ड फेमस हो सकता हूं। तो इस पेन को वो क्लाउड समझो कि मेरे को प्लेटफॉर्म दे दिया गया, मुझे करना क्या। एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, वेरी फेमस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ डेवऑप्स एंड क्लाउड, हाउ डू यू होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट ऑन एन S3 बकेट। S3 बकेट जो है वो AWS के केस में होती है, और स्टोरेज वाला जो होता है Azure। हम AWS के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने पूछा स्टैटिक वेबसाइट, तो तुम्हें पता होना चाहिए स्टैटिक वेबसाइट होती क्या है। मैं ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे होती क्या है, पर स्टैटिक वेबसाइट होती क्या है। कोड किसमें लिखा जा सकता है, क्या सिर्फ एक लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, या फिर 5-6 चीजें CSS HTML इसमें भी लिखा जा सकता है। अब स्टैटिक वेबसाइट तुम्हें पता लग गई। सेकेंड थिंग, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, कैसे कर सकता हूं। अब जैसा मैंने बताया था कि अगर आप लिनक्स सर्वर में काम कर सकते हो, तो क्या मैं मैनुअली डिप्लॉय करूं, या फिर मैं शेल स्क्रिप्ट लिख के उसके थ्रू डिप्लॉय करूं,
या फिर मैं डेवॉप्स के प्रिंसिपल देखूं, मैं डेवॉप्स के टूल्स इस्तेमाल करूं। अब डिप्लॉयमेंट में भी दो चीजें, एक बिल्ड करेगा, एक डिप्लॉय करेगा। आई मीन टॉपिक बहुत चीजें बड़ी होती जाती है। यस तो क्या यस है कि तुमने उस क्लाउड का इस्तेमाल करके क्या किया, तो तुम अपना प्लेटफॉर्म, अपने पोर्टफोलियो में ये लिख सकते हो, आई हैव डिप्लॉयड अ स्टैटिक वेबसाइट ऑन एन S3 बकेट। बहुत बेसिक एग्जांपल। दूसरा ये कि मैंने टेस्टिंग कैसे करी, जो एप्लीकेशन का लोड बैलेंसर था, मैंने उस पर बहुत सारी रिक्वेस्ट मार के देखी। अब रिक्वेस्ट कैसे मारी उस पर बहुत सारी, वो तुम डिसाइड करोगे, और फिर वो 1 से 2 स्पिन हो गए। तो ये जो लोड बैलेंसर वाला काम था वो मैंने किया। ठीक है, एक ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन, मान लो तुम डेवलपर नहीं हो और तुम डेवलपर बनना भी नहीं चाहते, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन क्लाउड पे काम कैसे करती है। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल कि मेरे एक दोस्त ने, कॉलेज में प्रोजेक्ट्स होते हैं 4th ईयर में, आई गेस डिस्कस यस करते हैं शायद उसे। एग्जैक्टली लास्ट में मेरे कॉलेज में जो डेवलपर्स थे, उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था। उन लोगों ने क्या किया था, एक ऑक्शन बार्टर की वेबसाइट बनाई। ठीक है, उसका जो डेटाबेस था वो MS SQL में था। अब मेरा जो MS SQL था वो खराब हो गया। तो मैंने क्या करा, मतलब मैंने ऐसा नहीं करा, मैं बता रहा हूं कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं, कि मैंने क्या करा, उस डेटाबेस को मैंने माइग्रेट करवा दिया, क्योंकि मेरे पास बैकअप था। तो मैंने उस डेटाबेस को माइग्रेट करवा दिया RDS सर्विस। तो उसके लिए एक और टूल होता है, डेटा माइग्रेशन सर्विस, DMS करके होती है। तो मैंने DMS का इस्तेमाल करके अपना डेटा क्लाउड में डाल दिया। तो अब मेरी एप्लीकेशन जो है, जो किसी डेवलपर ने बनाई है, वो बात करती है RDS से, और ये सेटअप मैंने किया। अब ओके इसके अराउंड तुमसे क्वेश्चन पूछे, सिर्फ इस पे तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात पे, कि आधे घंटे का कॉन्वर्सेशन हो जाएगा सिर्फ इतनी सी बात पे, कि मैंने जो डेटाबेस था वो माइग्रेट करा था एप्लीकेशन का उससे। और वो अगर कोई सेम इंटरव्यू होगा, तुमसे पूछेगा कैसे, तो तुमसे समझाओ कि डेटाबेस यहाँ था, ऐसे लिया, ये कमांड्स थी, वहां गया। फिर वो सवाल, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएगा कि एप्लीकेशन कैसे बात कर रही है उससे, सिक्योरिटी के लिए क्या किया तुमने। तो ये सब चीजें 15-20 मिनट, आधे घंटे का कॉन्वर्सेशन इजीली हो जाएगा इस पे, कि ये चीजें मैंने करी है। तो आप ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, जहां पर आप देख सकते हैं कि अच्छा ये सब मैंने ऐसे किया। और बहुत बेसिक चीजें भी कर सकते हैं, कि मतलब EC2 जो था, वो जो स्पिन किया मैंने, तो किन किन चीजों का ध्यान रखा मैंने उसमें, कि सिक्योरिटी ग्रुप कैसे लगाना है, उसके अंदर मैंने चीजें इंस्टॉल करी। तो मान लीजिए आपने RDS का इस्तेमाल नहीं करा, आपने एक EC2 इंस्टेंस दिया, उसके अंदर चीजें इंस्टॉल करी, तो उसके लिए आपने कैसे कनेक्ट किया उसे। तो ये बहुत बेसिक चीजें करके आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें 3-4 चीजें लिख सकते हैं कि ये चीज की। और सब जानते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप बिल पे नहीं करेंगे उसका। तो जितना पॉसिबल हो सकता है 200 क्रेडिट्स, 1200 क्रेडिट्स में, उतना मैंने किया। पीपल विल अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट इसमें वो तो है। क्योंकि मैं लोगों से सवाल यही पूछता हूं, लोग बोलते हैं कि मेरे को ये बनना है, अच्छी बात है। अब जैसे मुझे विराट विराट कोहली बनना है, ठीक है, विराट कोहली बनने के लिए मैंने किया क्या है, मेरे से सवाल यही पूछा जाएगा। हर बंदा बोलता है मुझे डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, मुझे क्लाउड इंजीनियर बनना है। किया गया तुमने उसके लिए? वही, मतलब लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं, अब मेरा पहला सवाल यही होता है कि तुमने क्या किया। और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में यही है, IT इंडस्ट्री में यही है। कोई भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा, कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा ना, तो मैं उससे पूछूंगा तुमने क्या किया। मेरी अगर उंगली मेरे पेन से कट गई, सॉरी मेरी उंगली मेरे चाकू से कट गई, तो मैं मम्मी के पास ये लेके नहीं भागूंगा मेरी उंगली कट गई। ठीक है, मम्मी बोलेंगे उस खून को रोकने के लिए तुमने क्या किया, पानी से साफ किया, पट्टी लगाई, बैंडेड लगाई, ये वाली चीजें। तो स्टूडेंट्स में हमेशा ये अप्रोच होनी चाहिए कि मतलब मैंने ये किया। तो इंटरव्यूअर पूछेगा अच्छा तुम्हारे पोर्टफोलियो में लिखा है कि तुमने होस्ट करी थी एक वेबसाइट S3 बकेट पे, अब बताओ कैसे करी। फिर वो ये भी पूछेगा कोड किसने लिखा। तो एक क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर को पता होना चाहिए कि मतलब कोड जो है काम कैसे करता है, चाहे अच्छे से कोडिंग ना आती हो, पता होना चाहिए। तो ऐसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। So basically, you are trying to say is कि काफी simple है, like in your resume, instead of just writing these terms EC2 AWS, explain the process and obviously don't write book मत लिखो उसमें हाँ, आप एक like maybe 2 or 3 lines में you can just explain it, and obviously if a interviewer can see that and can understand, and if you can explain in an interview, obviously they will be able to understand कि आपके पास ये जो knowledge है ये bookish knowledge है या फिर that is a knowledge which you have actually gained by doing. So Ravish, it is awesome. I've learned. I mean, obviously, I am aware of this, but I hope students have learned a lot of things about it. But I have a last question for you, and which is going to be very obvious question. You have around 14 years, 12 years of experience, especially if I talk about, I'm not sure how relevant experience you have in cloud and DevOps. If I talk about, what is one mistake which you want a student to avoid,
so that they can actually learn, or I would say they can grasp the concepts of cloud faster compared to maybe other examples you have seen, or maybe you want to take any example from your end also. ओके वैसे तो बहुत सारी चीजें आई कैन टेल यू थाउजेंड ऑफ थिंग्स कि जो तुम ना करो तो बेटर है, तो मैं पॉइंट आउट कोशिश करूंगा कि एक से दो बता दूं. ओके पहली चीज ये है कि एक चीज पकड़ो, ये नहीं कि मुझे जीसीपी भी सीखना है, एडब्ल्यूएस भी सीखना है, एज्योर भी सीखना है. तो फर्स्ट थिंग इज कोई एक चीज पकड़ लो. अब लोग सवाल ये पूछते हैं कि फेमस कौन सा है. अरे फेमस से फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम चाहते हो फेमस जाना तो हाँ एडब्ल्यूएस का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. ओके कॉन्सेप्ट की वैल्यू होती है, क्लाउड की वैल्यू उतनी नहीं है. तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि थोड़ा सा एडब्ल्यूएस पढ़ने लग गए. ठीक है, अरे यार समझ में नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, चल एज्योर की तरफ चलते हैं. अरे यार मजा नहीं आ रहा इसमें, चल जीसीपी की तरफ चलते हैं. ये मत करो, एक पकड़ लो, उसे 6 महीना 1 साल दो. और इतना नहीं दे सकते, मतलब आई थिंक स्टूडेंट लाइफ में 4 साल होते हैं तुम्हारे पास. तुम अगर सेकेंड ईयर में भी जागे हो तो तुम्हारे पास 3 साल है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ो. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो एसएमई होता है वो बनो उसके, कि मतलब जानो कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. और एक बार मैं बोल रहा हूँ, वही वाली चीज रिपीट करूंगा कि एक बार तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी आ गई, तुम्हें यामाहा चलानी आ गई, तो तुम पल्सर भी चला लोगे. तुम्हें अगर बीएमडब्ल्यू चलानी आती है तो तुम ऑडी भी चला लोगे. तो ये चीजें पहली मिस्टेक लोग ये करते हैं, वो हो जाते हैं कि मतलब ये करूं ये करूं ये करूं. मेरी मानो, चलो अगर तुम मेरे से ही ले रहे हो तो एज्योर पकड़ लो, अगर उसमें कुछ फ्री में मिल रहा है तो एज्योर पकड़ लो, सीखो कि मतलब क्या हो रहा है. और सारी चीजों के बारे में नॉलेज हो जाएगा जब तुम्हें. तो अगर तुम्हें दूसरी कंपनी में भी जाना होगा, और लोग इतने समझदार होते हैं इंटरव्यूअर्स, वो बोलते हैं कि हमारी कंपनी में एडब्ल्यूएस है, तुम्हें अगर एज्योर आता है तो एज्योर पे इंटरव्यू दे दो. गूगल जैसी कंपनी ये बोलती है कि तुम्हें जिस क्लाउड में आता है तुम उस क्लाउड में इंटरव्यू दे दो, बाकी हम देख लेंगे. आई नो समवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए क्लाउड में गई थी, उसमें गई थी, गूगल में गई थी, उसने इंटरव्यू दिया, उसने बोला मुझे एडब्ल्यूएस आता है, उसने कहा एडब्ल्यूएस पे इंटरव्यू दे दो. लोग इतने ओपन माइंडेड होते हैं कि मतलब नहीं नहीं भाई मैं तो गूगल में हूं तो मैं तो जीसीपी पे इंटरव्यू दे. नहीं, काम जीसीपी पे कर लेगी पर इंटरव्यू मेरे को एडब्ल्यूएस पे दे देगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है. 2-3 चीजें फालतू उसमें होंगी, 2-3 चीजें फालतू उसमें होंगी, बट 90% चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, नाम ही अलग है. तो ये चीज गलती मत करना. सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी कर चुका हूं, अपने अगर तुमने कोई भी सर्विस चालू रखी है, अगर तुम्हारी आंख भी लग रही है ना, तो पहले उसे बंद करो या डिलीट करो. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितना पैसा तुम्हारा एक बार में उड़ गया. EC2 सर्वर लोग क्या करते हैं, रात तक मेहनत करते हैं कि चले यार मैं अपना कोड डिप्लॉय करके देखता हूँ इसमें, ऐसा मतलब करते हैं. उसके बाद 2-3 बजे कहता है हो गया मेरा कोड डिप्लॉय, और इसी खुशी में लैपटॉप बंद, सर्वर बंद करना भूल जाते हैं. ठीक है. तो ये चीज भी तुम्हें पता लगेगी जब आप क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे कि स्टॉप्ड, टर्मिनेटेड और क्लोज में क्या फर्क होता है, इन सब चीजों में क्या फर्क है. कि मेरा जब स्टॉप है तो मेरी पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मेरा टर्मिनेट हो गया तो मेरा सर्वर है या नहीं है, ये सब चीजें तुम्हें पता लगेंगी. तो ये 2 गलतियां तो मत ही करना. और फास्टन अप प्रोसेस के लिए मैं बता सकता हूँ कि किताबी नॉलेज मत लो. ओके कि मतलब कोर्स चला दिया तुमने, ऐसा करके पढ़ रहे हैं, हाँ ये आता है, हाँ ये भी आ गया, हाँ ये भी आ गया. वो एक क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि तुमने सिर्फ किताबी नॉलेज रखी है, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. और जब फ्री में मिल रहा है, तुम्हारे पास बस एक कार्ड होना चाहिए, फ्री में मिल रहा है, वो तुम्हें 1 साल तक के क्रेडिट देता है. 1 साल या तो टाइम कर लो पूरा, या फिर 1200 क्रेडिट या 200 क्रेडिट जो भी है वो एग्जॉस्ट कर लो. तो ये 3 गलतियां मत करना. मैं रिआइटरेट कर देता हूँ. पहला, एक चीज पकड़ो, सब चीजों में मत डालो हाथ. कोई सी भी एक क्लाउड पकड़ लो, उसे सीख लो. सेकंड जो है, सेकंड क्या बोला था मैंने, सेकंड डिलीट द सर्विसेज. हाँ, सर्विसेज डिलीट करके रखना. और ये मत सोचना कि मैंने ऑन कर दी पैसा नहीं लगेगा, पैसा लग जाता है, वो चीज का ध्यान रखना. और थर्ड चीज क्या बोली, थियोरेटिकल नॉलेज. हाँ, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज. मेरे को लिख के रख लेना चाहिए ये सब चीजें. The second point which Ravesh has mentioned, obviously I have also paid for that. I remember around 3,000 rupees I've paid for Microsoft Azure just to keep a service up and running. And like I want to just reiterate, this is an important factor because see, as a student आपने सोचा कि मैंने स्विगी में, जोमेटो में अपना कार्ड लगा के रखा है, तो ऑब्वियसली बात है जब तक मैं कुछ खरीदूंगा नहीं, मेरा कार्ड से कोई पैसा जाएगा नहीं. बट क्लाउड में ये होता है कि लाइक इफ यू हैव स्टार्टेड अ सर्विस, अगेन दिस इज सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड आई एम गिविंग ऑफ क्लाउड. इफ यू हैव स्टार्टेड अ सर्विस, देयर इज अ गुड चांस कि उसके साथ एक और सर्विस स्टार्ट होगी टू make that service running. Again, I'm not sure which example I should give right now, like let's say maybe big data related है.
So what will happen, those services, like right now you're paying for one service but now you're paying for two services subsequently, तो आपको दोनों का चार्ज लगेगा. So make sure कि आप काम कंप्लीट करके सबसे पहले डिलीट करो. एंड यू वोंट बिलीव, I don't want to say this, but even experts also make this mistake. मैंने भी मिस्टेक करी थी जब मैंने S3 में उसका डिलीट नहीं किया एंड आई वाज बीइंग चार्ज फॉर द डेटा बीइंग, मतलब जो डेटा स्टोर्ड है या फिर जो डेटा रिट्रीव हो रहा है उसके लिए. सो दिस द सेकंड पॉइंट इज क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट में चलो ठीक है थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, बट सेकंड पॉइंट से आपके मम्मी पापा भी नाराज होंगे, बोलेंगे ऐसा क्या कर रहे हो कि 15,000 का बिल आ गया. मैं एक और चीज ऐड करता हूँ इसमें, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं और आप ये चीज देख रहे हैं, तो इंडिया में डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का फंडा जो है वो बाहर से थोड़ा डिफरेंट है. यस. अभी जब आप फ्लिपकार्ट, अमेजन पे कुछ खरीदते हैं, आपके पास एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप डालते हैं और आपकी चीज अपडेट हो जाती है, खरीद लेते हैं कार्ड में जो भी था खरीद लेते हैं. यूएस मर्चेंट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, आपने एक बार क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल दी, वो बस सीवीवी एक बार मांगेगा आपसे, उसके बाद वो आपको ओटीपी नहीं देगा, वो सीधा पैसा काट लेगा, ऑटो डेबिट. ठीक है. और एक बार हो गया तो उसके पास डिटेल्स हैं, जैसे ही आपका क्रेडिट खत्म हुआ वो आपका पैसा उठा लेगा वहां से और आपको पता भी नहीं चलेगा. आप ये सोचते रह जाएंगे अरे मैंने तो ओटीपी दिया ही नहीं, मेरा पैसा कैसे काट लेंगे. ओटीपी वाला फंडा नहीं होता वहां पे, वो यूएस मर्चेंट जो होते हैं क्रेडिट कार्ड से सीधा पैसा काटते हैं. आई थिंक नेटफ्लिक्स में भी ये सब होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. सीधा पैसा काट लेते हैं, ऑटो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसा गया मेरा पैसा. तो इसमें मत रहना है कि मतलब ओटीपी आएगा मेरे पास. और जैसा कि आप सब्सिक्वेंट सीरीज का सर्विसेज का एग्जांपल दे रहे थे, वो बहुत सही चीज है. मान लीजिए, मतलब ये थोड़ा बड़े लेवल पे एग्जांपल हो गया, बट फ्री का नॉलेज है तो ले लीजिए. तो जैसे सर्विसेज हैं आपकी, मैं एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं. तो ईसीएस सर्विस होती है, एक इलास्टिक कंटेनर सर्विस, ये एडब्ल्यूएस में होती है, ठीक है. तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फारगेट और एक होता है EC2 सर्वर. आप अपनी सर्विस को दोनों में से किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कहने के लिए वो सिर्फ एक EC2 सर्विस है, ठीक है, लेकिन पीछे वो क्या कर रहा है, पीछे उसने सब्सिक्वेंट सर्विस बना रखी होगी जिसमें उसने EC2 सर्वर स्पिन कर रखे होंगे, ठीक है. तुम्हें तो लग रहा है कि मेरे को तो यहाँ पे बस एक EC2 सर्विस दिख रही, सॉरी ECS सर्विस दिख रही है, इसको डिलीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं होगी. और तुमने उसे डिलीट कर दिया, सो गए. लेकिन उसने पीछे जो EC2 सर्वर चला रखा है वो डिलीट किया, या वो डिलीट हुआ, या उसने तुम्हें बोला कि यार इसके पीछे कौन सर्विस, हो सकता है ना बोला, तो वहां से तुम पैसा भरोगे. तो ये हो जाता है. तो मतलब इन सब चीजों का ध्यान रखें. और जब ये चीज कई लोग, ठोकर एक बहुत बड़ा मास्टर है, वो सिखा देता है तुम्हें, तो ये चीज मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, पैसा उड़ जाएगा तुम्हारा. So Ravish, do you teach these kind of things in your channel? अभी तो मतलब मैं क्लाउड पे बहुत कम चीजें बता रहा हूँ. अभी तो मेरा मेन मोटिव जो है, मैं बताता हूँ लोगों को, हाउ डू यू स्टार्ट योर करियर इन डेवऑप्स पे कैसे आना चाहिए. मेरा कंटेंट 90% ऑफ द टाइम्स डेवऑप्स से बनता है. क्लाउड में अभी इंक्लूड नहीं करना क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं है. तो क्लाउड मैंने भी स्टार्ट नहीं करा. पर मैं रिसेंटली सोच रहा था कि मतलब टेराफॉर्म से रिलेटेड कुछ बताऊं, पर उसके लिए भी मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो सब अभी देख रहा हूँ, अभी करा नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% है. पर हाँ, फ्यूचर में कभी ये सब चीजें बताऊंगा. So obviously, like if you are watching him, go to his channel and subscribe. हो सकता है कि शायद जब तक आप वीडियो देखना चालू करें, maybe he has started teaching about cloud. So Ravish, it was great having you. काफी मजा आया, मतलब मुझे तो काफी सारी चीजें समझ में आई, और स्पेशली आई गॉट गूज बम्प व्हेन यू मेंशन्ड कि पैसे ज्यादा कट जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने में. सो आई जस्ट वांटेड टू रीट्रेट कि स्टूडेंट्स डोंट मेक दिस मिस्टेक. सो thank you very much for coming to our channel and sharing all the details. And obviously he is working with I mean he's working as a DevOps engineer in a company, and ये DevOps related videos बनाते हैं. So obviously if you are interested in DevOps, learning about it, ये भी एक बहुत बड़ी field है, I'll be very honest. So obviously I've tagged him over the this title of the video, and obviously the link of his channel is also available in the description. So go check out his channel also and obviously learn something from it. And I hope कि आप as a viewer you're going to make something जो कि in future we guys will use. So obviously we will be proud of that. So thank you very much, and we will see you in the next one.